السلام علیکم جی بچوں، شعر نمبر بند نمبر جو ہے وہ 4 آپ لوگ اوپن کر لیں گے، اسلامی مساوات نظم کا۔ کہاں بندگان ذلیل اور کہاں وہ، بسر کرتے ہیں بے غم قوت و نابو، پہنتے نہیں جز سمور و کتاب و، لفظوں کا تلفظ خیال کرنا ہے، لفظ کتاب پڑھنا ہے، کاف کے نیچے زیر، کتا نہیں پڑھ دینا اس کو، سمور و کتاب و، مکان رکھتے ہیں رش کے خلد جناب و، نہیں چلتے وہ بے سواری قدم بھر، نہیں رہتے بے نغمہ اساس دم بھر۔ کہاں بندگان ذلیل، پہلے لفظی معنی سمجھیں، بندگان ذلیل یعنی حقیر لوگ، ذلیل سے لفظ ویسے تو مراد ہوتا ہے کہ جو یعنی کہ برے لوگ ہوتے ہیں، ذلیل ان کو کہا جاتا ہے، لیکن یہاں وہ مراد نہیں ہے، یہاں سے مراد ہے بندگان ذلیل سے کہ جو یعنی کہ غریب غربا لوگ ہیں، کیونکہ ویسے دیکھا جائے تو غربا کی آپ جانتے ہو جو زمانہ جو دور چل رہا ہے اس کے اندر کوئی ویلیو کوئی اہمیت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، کہ جو ہے نا ان کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، غریبوں کو جو ہے نا جو ہے ان کے لیے لوگ اچھی سوچ نہیں رکھتے، مادیت پرستی کا دور ہے، ہر اس شخص کی عزت ہے معاشرے کے اندر جس کے پاس مادی جو ہے نا وہ اشیاء سارے کی ساری جو ہے وہ موجود ہوں، تو اس لیے جو ہے نا یہاں پر وہ انہوں نے جو ہے نا وہ بندگان غریب ذلیل کہا ہے، وہ جس کا شعر بھی ہے نا، محسن غریب لوگ تو تنکوں کا ڈھیر ہیں، پانی میں بہہ گئے تو کبھی ملبے میں دب گئے، تو ان کی حیثیت جو ہے نا وہ یہی ہوتی ہے۔ اچھا جی، اسی طرح وہ کہتے ہیں کہاں بندگان ذلیل اور کہاں وہ، اس میں نظم اصل میں نا ایک کمپیریزن ہے، ایک موازنہ کر رہے ہیں دونوں معاشروں کا، دونوں جو ہے نا وہ طبقوں کا، غربا اور امراء دونوں طبقوں کا، کہ آپ لوگ دیکھ لیں کہ امراء کیسے ہوتے ہیں اور غربا جو ہے نا کیسے ہوتے ہیں، پھر دونوں کی زندگی کے بارے میں جو ہے نا فرق بتاتے ہیں کہ ان کا رہن سہن الگ ہے، ان کا رہن سہن الگ ہے، پھر ان کا آپس میں مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا، دونوں الگ طبقے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، اور دونوں آپس میں ان کے انڈرسٹینڈنگ بھی نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو بہت اعلیٰ سمجھتے ہیں، یہ اتنے احساس کمتری کا شکار ان کو کر دیا جاتا ہے کہ یہ ان سے جو ہے نا وہ الگ تھلگ ہی رہتے ہیں۔ کہاں بندگان ذلیل اور کہاں وہ کون؟ امراء، یعنی یہ غریب لوگ، یہ حقیر سے لوگ جو ہے نا یہ کہاں اور وہ کہاں، یہ کیسے جو ہے نا برابر ہو سکتے ہیں؟ بسر کرتے ہیں بے غم و قوت نہ وہ، کون؟ امراء جو لوگ ہوتے ہیں وہ بغیر غم کے، کس کا غم نہیں ہوتا؟ قوت و نہ کا، قوت ویسے لفظی معنی ہوتا ہے روٹی، نہ یعنی قوت روزی، نہ روٹی کے معنی میں، بغیر کھانے پینے کے، ٹھیک ہے نا جی، ان کو بھوک کا ڈر نہیں ہوتا، ان کو مفلسی کا ڈر نہیں ہوتا، ان کو غربت کا ڈر نہیں ہوتا، انہیں یہ ڈر نہیں ہوتا کہ ہم بھوکے سو جائیں گے، ہم جو ہے نا یہ ہو جائیں گے وہ ہو جائے گا، کیوں؟ ان کے پاس سب کچھ وافر مقدار کے اندر موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان کو اس بات کی ٹینشن نہیں ہوتی، بلکہ ان کو ٹینشن اس بات کی ہوتی ہے کہ ہم اس کیسے جو ہے نا وہ زیادہ کریں، کبھی وہ جو ہے نا ایسا نہیں ہوتا کہ وہ بھوکے سوئے ہوئے ہوں، ٹھیک ہے، کہ ہمیشہ جو ہے نا پیٹ بھر کے سوتے ہیں، وافر مقدار میں جو ہے نا کھا پی کے وہ لوگ جو ہے وہ سوتے ہیں، ان کے پاس سب کچھ وافر مقدار کے اندر موجود ہوتا ہے، ان کے پاس غلہ ایک سال کیا ہمیشہ تک جو ہے نا وہ کافی عرصہ جو ہے نا اسی غلے سے جو ہے وہ کھا پی سکتے ہیں، ان کے پاس سب کچھ جو ہے وہ وافر مقدار کے اندر جو ہے وہ موجود ہوتا ہے۔ پہنتے، اچھا یہ تو پہلے 2 مصروں کے اندر بات انہوں نے کر دی ہے کہ جو غربا ہیں اور امراء ہیں یہ کھانے پینے کے معاملے کے اندر جو ہے وہ برابر کبھی نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے، جبکہ جو غربا لوگ ہوتے ہیں آپ جانتے ہو ان کے پاس صبح ہوتا ہے تو ان کے پاس شام کو نہیں ہوتا، اگر ایک دن وہ گھر میں بیٹھ جائیں کام کاج پہ نہ جائیں تو میرے خیال میں وہ لوگ جو ہے نا بھوک سے مر جائیں گے، ان کو پانی پی کے رات بسر کرنی پڑے گی، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، ان کی کیفیت ان بیچاروں کی یہ ہوتی ہے کہ وہ سارا دن جو ہے وہ کام کرتے ہیں، دہاڑی پہ کام کرتے ہیں، ریڑی لگاتے ہیں، جو ہے نا مزدوری کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہے نا پھر ان کا گزر بسر جو ہے وہ ہوتا ہے، وگرنہ ان کے لیے جو ہے وہ بڑا مشکل ہوتا ہے کام۔
अच्छा जी, अगले मिसरे में कहते हैं पहनते नहीं जुज समूरो किताबो। साथ साथ बात को समझते जाएं ताकि मैं इसको खत्म कर दूं आज। जुज जुज ये जो है वो अरबी का लफ्ज होता है जिसका मतलब होता है सिवाय। पहनते नहीं सिवाय समूरो किताबो। समूर समर से होता है जिसका मतलब होता है लोमड़ी। ठीक है, ये भी अरबी का लफ्ज है। अरबी में समूर जो है वो लोमड़ी को कहा जाता है। लोमड़ी की खाल यहां से मुराद होगा, अब ये तो नहीं होता कि कोई लोमड़ी को पहन ले उठा के, ठीक है, साफ ज़ाहिर है लोमड़ी की खाल पहनी जाती है, उस खाल उतारा जाता है, खाल से जो है ना फिर वो बड़े महंगे महंगे जो है वो कोट बनते हैं, महंगे महंगे जो है वो कपड़े बनते हैं। तो यहाँ पर वो वही बात करते हैं कि पहनते नहीं जुज समूरो किताबो, सिवाय समूर के, यानी समूर बड़ी महंगी महंगी उनकी ऊन से, उनके चमड़े से जो है ना वो बने हुए कपड़े, गर्म कपड़े जो है वो उन्होंने जो है वो पहने होते हैं। कितान, कितान जो होता है ये भी एक कीमती नरम कपड़ा होता है। इसके बारे में जो है ना मशहूर है कितान के बारे में कि वो इतना जो है ना वो नरम और मुलायम कपड़ा होता है कि अगर उसको चांद की चांदनी के सामने भी कर दिया जाए तो उसकी चांदनी की वजह से भी ये फट जाएगा, उस रोशनी की वजह से भी फट जाए, इतना नरम और मुलायम होता है। ठीक है ना। तो गर्मियों में बड़े नरम नरम मुलायम मुलायम खूबसूरत जो है ना वो कपड़े पहनते हैं। सर्दियों के अंदर बड़े गर्म कपड़े महंगे महंगे, यानी कि सर्दियों के लिबास उनके अलग होते हैं, गर्मियों के उनके लिबास अलग होते हैं। जबकि जो गरीब होता है उसका क्या होता है, वो बेचारा साल में सूट लिया, वो जो गर्मी सर्दी है उसको नहीं देख रहा होता, वो ये देख रहा होता है कि मेरा साल इसके अंदर जो है ना वो गुजर जाएगा। उनका सर्दी का भी वही लिबास होता है, उनका गर्मी का भी वही होता है, बहार का भी वही होता है, खिज़ां का भी उनका होता है, अलग लिबास नहीं होते। यहाँ तो आप जानते हो बहुत सारे ऐसे लोग हैं टीवियों के ऊपर आए बैठे होते हैं, बड़े बड़े एंकर पर्सन जो होते हैं, ये वीआईपी पर्सन जितने भी हैं, और इसी तरह अदाकार, ये जो है ना वो इसी तरह दूसरे लोग जो होते हैं ये हुकूमती जो है ना इसमें, तो इनके क्या होता है कि जिस लिबास को वो एक बार पहन ले फिर से उस लिबास को पहन के किसी पार्टी में, किसी महफिल में या किसी भी ऐसे प्रोग्राम में जो है जाना वो अपने लिए मायूस समझते हैं उसमें। तो ये भी एक फजूल खर्ची के अंदर जो है वो चीज बहुत ज्यादा आती है, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। एक सूट है आप जो है ना उसमें, तो बहरहाल ये एक सोच जो है वो पाई जाती है। तो कहते हैं पहनते नहीं जुज समूरो किताबो, लोमड़ी की खाल से के बने हुए गरम गरम ऊनी कपड़े जो है ना वो पहनते हैं। और इसी तरह गर्मियों के अंदर जो है ना वो नरम नरम मुलायम जो है वो कपड़े उन्होंने वो पहने होते हैं। आगे बात करते हैं उनके बारे में। पहले तो उनके यानी खाने पीने के बारे में बात की, लिबास के बारे में बात की उन्होंने दूसरे बंद के अंदर, दूसरे तीसरे मिसरे के अंदर। अब चौथे मिसरे में ये कहते हैं मकान रखते हैं रश के खुल्दे जिनाबो। मकान, उनके जो मकान हैं वो इतने जो है वो यानी घर, आप जानते हो कि बड़ी बड़ी बुलंदो बाला, ठीक है, बिल्डिंगे, इमारतें, और आसमान को जो है ना वो छूनी सर बफलक इमारतें उनकी जो है वो उनकी जो है वो बनी होती हैं। बुलंदो बाला बड़ी बड़ी इमारतें जो है ना वो बनाते हैं, एक इमारत के ऊपर एक इमारत के ऊपर। आप बड़े बड़े शहरों में जाएं, आपके जलालपुर में तो इस कदर जो है वो यहाँ पर नहीं होंगे। अगर आप लाहौर कराची का रुख करें तो इंसान की अकल हैरान हो जाती है कि कई कई मंजिला जो है वो इमारत बनी होती हैं। क्या काबिलियत से, क्या महारतों से उन लोगों ने जो है वो बनाए होते हैं। तो ये ऐसे ही लोग होते हैं जिनके पास बेतहाशा वापर मिकदार के अंदर उन लोगों के पास दौलत मौजूद होती है, जिसका बेदरीग इस्तेमाल करते हैं। जहां अपने लिबास पे करते हैं, जहां अपने खाने पे करते हैं, तो वहां बेहतरीन आलीशान जो है ना वो महल भी तामीर करते हैं कि जिसको देख के अब वो कहते हैं कि ऐसे उनके मकान होते हैं, ठीक है ना जी। उनके अंदर जो है ना कमरे, जो है ना बाला खाने, और इसी तरह जो है ना वो बाकी तमाम चीजें, अलग अलग रूम उनके अंदर होते हैं कि इस कदर खूबसूरत कमरे और इतने आलीशान महल बनाते हैं कि रश के खुल्द जिना, खुल्द बहश्त को कहते हैं, जिना जन्नती, कि बहश्त में जन्नती भी उसके ऊपर रश्क करें कि जन्नत के अंदर जो बहश्त है, बहश्त भी जन्नत, तो बहश्त के अंदर जो जन्नती होंगे वो भी उसको देख के रश्क करें कि यार क्या महल है तेरा, क्या घर है तू, यानी जिसको जन्नत भी देख के रश्क करें। हालांकि ऐसी बात नहीं है, दुनिया में जितना खूबसूरत कोई जो है वो महल मकान बना ले तो जन्नत के एक दीवार का भी मुकाबला जो है ना वो नहीं कर सकते। लेकिन शायर ने यहाँ थोड़े से मुबालगराई से काम लेते हुए एक बात समझाई है कि उनके जो मकान, उनके घर बार जो होते हैं वो इतने आलीशान जो है वो महल तामीर करते हैं। याद रखिएगा लफ्ज दो होते हैं, एक होता है हसद और एक होता है रश्क। जो हसद होता है ना वो ये होता है कि किसी इंसान के दिल में इस बात का आना कि जनाब ये चीज मेरे पास हो और उसके पास ना हो,
یہ नाजायज है। इन्नल हसद याकुल हसनात कमा याकुल नारुल हतब। हसद जो होता है वो नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे आग जो है वो लकड़ियों को खा जाती है। हसद से बचना चाहिए। हसद में अगले बंदे का जाता कुछ नहीं है, इसके पास बचता कुछ नहीं है। हसद इंसान को बर्बाद कर देता है, इंसान अंदर ही अंदर कुड़ता रहता है और हासिद बंदा कभी भी तरक्की। रश्क ये जायज है, ये सही है और ये तो फितरती बात है, ये तो हर इंसान के दिल में ख्याल आता है, इंसान इसके बिना नहीं। किसी के पास भी अच्छी चीज देखी है, गाड़ी देखी है, घर देखा है, मकान देखा है, इंसान ने लिबास देखा है, तो इंसान के दिल में मन में ये बात आती है कि इस तरह की जो है ना गाड़ी, इस तरह का घर, इस तरह की चीज, इस तरह का आलीशान महल बंगला, इस तरह की इज्जत, इस तरह की शोहरत, ओहदा वो मेरे पास भी हो। ये सही है, इसको रश्क कहा जाता है। यानी उसके पास है तो मेरे पास भी होना चाहिए। अगर ये आ जाए कि उसके पास ना हो तो ये हसद है, अगर ये है कि उसके पास हो मेरे पास भी हो तो ये रश्क, और रश्क जायज है, इसमें कोई हर्ज नहीं अगर इसमें। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि मकान रखते हैं रश्क के खुल्द जिना, वो कि जिना यानी जन्नती लोग जो हैं वो बहश के अंदर जो है वो इस बात पर रश्क करेंगे कि क्या इनके घर हैं, क्या आलीशान जो है वो महल हैं। तीन चीजें बात होगी। चौथी उनकी आदत के बारे में यानी उमरा की बात आदत के बारे में बताते हैं कि नहीं चलते वो बेसवारी कदम भर। उनका यानी आना जाना, उनका सफर जो होती है, उनकी ट्रैवलिंग जो होती है वो क्या होती है, वो बड़ी बड़ी आलीशान गाड़ियों के ऊपर होती है। यहाँ आज तो आप देख लें कि अगर आपके मुल्क के अंदर जो ओहदेदार हैं, जो हुक्मरान हैं, वो ना सिर्फ अपनी गाड़ी के ऊपर जो है वो सफर करते हैं, बल्कि पूरे प्रोटोकॉल के साथ उनके आगे गाड़ियां, उनके पीछे गाड़ियां, दाएं बाएं उनके जो है ना वो गाड़ियां जो है वो जा रही हैं। तो बड़ी महंगी महंगी गाड़ियां उन्होंने खरीदना जो है वो लेना, ठीक है। एक वक्त हुआ करता था कि पहले गाड़ी, खच्चर, घोड़ा जो है ना, गधा, इन्हीं को समझा जाता था। आज जो है ना बड़ी आली आली शान जो है वो गाड़ियां आके इंसान की अकल हैरान रह जाती है, इतनी महंगी महंगी गाड़ियां। तो उनके पास जो है ना यानी बेहतरीन से बेहतरीन गाड़ी उनके पास जो है वो मौजूद होती है, नामवर गाड़ियां उनमें। आखिरी उनकी जो पांचवी आदत है उमरा की, यानी पहले नंबर पे कि वो खाने पीने के मामले में बेदरेग इस्तेमाल करते हैं, उन्हें फिक्र नहीं होती, हर चीज उनके पास जो है वो मौजूद होती है। दूसरे नंबर पे वो कहते हैं उनका लिबास बड़ा महंगा होता है, हर मौसम का लिबास उनके पास अलग होता है, सर्दी का अलग, गर्मी का अलग उनके पास मौजूद होता है। जबकि तीसरी आदत उनकी बताई कि उनके मकान ऐसे होते हैं कि जिसके ऊपर बहिश्त भी रश्क करने लग जाए, इतना खूबसूरत आली जो है ना महल। चौथे नंबर पे कहते हैं कि उनका सफर बड़ी बड़ी अहम सवारियों के ऊपर होता है, पैदल नहीं चल सकते वो लोग, आदत ही नहीं होती, पैदा हुए तो गाड़ियों के ऊपर जो है ना वो उन्होंने सफर शुरू कर दिया ताकि मौत तक उनको जो है ना, तो पैदल चलने की उनको आदत ही नहीं होती, कभी थोड़ा सा चलना पड़े। इस वजह से आप देखते हो कि पहले दौर में लोग सेहतमंद होते थे, तंदुरुस्त तवाना होते थे। वजह क्या होती थी कि उनको चलने की, वॉक करने की जो है वो आदत होती थी, चलते फिरते थे जो है ना, बड़े लंबे लंबे सफर जो है वो पैदल किया करते थे। आज चलते ही नहीं है, इस वजह से बीमारियां बेतहाशा होती हैं। इंसान आजकल मैं कहता हूँ जहां गाड़ियों के ऊपर चल रहे होते हैं वहां दवाइयों के बलबूते के ऊपर भी चल रहे होते हैं। तो इस कदर जो है ना नरम और नाजुक मिजाज जो है वो लोग बन गए हैं। तो नहीं रहते, आखिरी जो पांचवी इसमें जो है वो आदत वो बताते हैं, नहीं रहते बेनगमा साज दम भर, ठीक है। उनकी एक आदत होती है कि जो है वो गाने उनके जो है ना वो सुनना, आप देखते हो बहुत गाड़ियां हैं, गाड़ी चल रही है तो साथ में मौसीकी, म्यूजिक हल्का हल्का जो है ना वो चलाया हुआ होता है, गाने जो है ना, अगर बैठे हैं कहीं चल रहे हैं तो कानों के अंदर हैंड फ्री लगी हुई है, साथ में जो है ना वो गाने सुन रहे हैं, बैठे हैं तो जो है वो गाने सुन रहे। मीन एक आदत बन जाती है उनकी कि मौसीकी के बगैर, मौसीकी के दिलदादा होते हैं, हत्ता कि फिर कहने पे मजबूर हो जाते हैं जनाब के बगैर मौसीकी जो है ना वो रूह की ग़िज़ा है। कभी कुरान पढ़ के नहीं देखा होता, इस्लामी तालीमात की तरफ आए नहीं होते, उनको नहीं पता होता कि असल सुकून कुरान पढ़ने के अंदर है। वो कभी पढ़ा नहीं होता ना, उस कुरान पढ़ने की जो लज्जत है उसको उन्होंने महसूस नहीं किया होता। अगर पढ़ते तो उनको पता चलता कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। यकीन करो गाने सुनने वालों को मैंने कभी भी पुरसुकून यानी म्यूजिक के दिलदादा जो पसंद करने वाले होते हैं, कभी सुकून नहीं मैंने उनको देखा। हालांकि सब कुछ उनके पास दुनिया में होता है, गाड़ी उनके पास बेहतरीन है, उनके पास जो लिबास अच्छा है, खाना पीना सब कुछ अच्छा है, उनके पास तमाम वो दौलतें दुनिया के अंदर जो नेमतें हैं वो सारी उनके पास मौजूद होती हैं, लेकिन सुकून से वो लोग महरूम होते हैं। म्यूजिक मौसीकी सुनते हैं, लेकिन उन लोगों को मैंने पुरसुकून पाया है कि उनका घर इन तमाम चीजों से जो है ना वो खाली होता है, उनके पास
खाना कभी होता है कभी नहीं होता, उनके पास कोई ऐसी जो है ना वो शानदार चीज उनके पास नहीं होती, लेकिन वो अल्लाह से ताल्लुक रखते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं ला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, के दिल जो हैं वो अल्लाह के जिक्र के साथ मुतमईन होते हैं। तो यहाँ पर वही कहता है कि नहीं रहते बेनगमा ओ साजो बेनगमा ओ साज दम भर। तो जिस तरह शायर कहते हैं ना, किताब मुअल्लम से फिरते हैं भागे मगर नाच गाने में है सबसे आगे हैं। कोई इस तरह की चीज होती है, सबसे आगे ये लोग नजर आएंगे, लेकिन उनसे पूछ के देख लो कि कुरान क्या है, हदीस क्या है, इस्लाम क्या कहता है, कुछ उनको जो है वो पता नहीं होगा। तुझको बताऊं तकदीर उमम क्या है, शमशीर सना अव्वल ताउस और बाब आखिर। आज जो है कि हमारी जो चीज बुनियादी तौर पे हमारे आगे जो है ना वो होनी चाहिए थी, हमारे लिए मुकद्दम होनी चाहिए थी, वो बदकिस्मती से आज वो जो है वो आखिर के अंदर जो है वो चली गई। इसी वजह से उम्मत जवाल का शिकार है, इसी वजह से जो है वो मुसलमानों के ऊपर अंग्रेजों ने 100 साल जो है वो गुलामी की, इसी वजह से उन्होंने हमें आजादी से हम निकल के गुलामी के अंदर जो है ना वो आ गए थे। और हमने क्या कुछ कितनी नस्लें तबाह हुई हैं, क्या मुसलमानों का जो शान शौकत थी, मुसलमानों की जो नाम था, वो सारा कुछ खत्म इसी वजह से हुआ था। जो मौसीकी के दिलदादा बन गए थे, जो बगैर सवारी के चल नहीं सकते थे, जिन्होंने जिनका जो है ना हर वक्त जो है ना खाने के ऊपर तवज्जो होती थी, जिनकी ये होती थी कि आलीशान बंगले महल्ला जो होते हैं, तो ये मादियत परस्ती के पीछे जब कौमें पड़ जाती हैं तो फिर उनके ऊपर सवार, स्पेशली मुसलमान जो होता है ना, मुसलमान की तो ये पहचान ही नहीं है, अपनी मिल्लत पे क्या सकवा में मगरिब से न कर खास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। जो गैर मुस्लिम है वो तो इन चीजों को लेकर फिर भी आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन एक मुसलमान जब इन चीजों के पीछे भागता है तो अल्लाह ताला उनको जलील और खार कर देता है, वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। मुसलमान तो उसके मकसद ही ये नहीं है दुनिया के अंदर आना, ये चीजें उसका मकसद और है, उसका मकसद है इंसानियत दुनिया के अंदर जो है ना वो अल्लाह ताला के नाम को जो है वो बुलंद करना। तो इसी वजह से देख लो कि इसमें बहुत खूबसूरती से मैं कहता हूँ तमाम पूरे जो उन्होंने 7 बंद हैं इस इस्लामी मुसावत जो नज़म है उसके लेके आए, सबसे बेहतरीन है। यानी इन चीजों के ऊपर हमारी तवज्जो है जिस बुनियाद पे आज जो है वो मुसलमान नाकाम होते जा रहे हैं, ये सारी चीजें जो है ना इसमें। तो ये 5 पॉइंट अपने ज़हन में रखने हैं, और याद रखिएगा ये पैराग्राफ जो होता है ना, ये जो बंद होता है, ये पेपर के अंदर अक्सर इसमें से जो है वो आया होता है कोई ना कोई शेर। अगर आए तो ये 5 आप लोगों ने पॉइंट अपने सामने रखने हैं, ताकि मैं फिर से दोहरा रहा हूं ताकि आप लोगों को याद हो जाए कि दोनों आपस में मुकाबला है कि बराबर नहीं हो सकते। उमरा और गुरबा कभी भी एक जैसे जो है ना वो नहीं हो सकते, क्योंकि नंबर 1 कि इनके पास जो है ना खाने पीना वाफर मिकदार में, नंबर 2 इनके पास जो है ना लिबास जो है उसके ऊपर तवज्जो होती है, बेहतरीन रखते हैं, मकान बेहतरीन रखते हैं, चौथे नंबर पे वो बगैर सवारी के नहीं चल सकते, आलीशान उनके पास गाड़ियां होती हैं, और 5वें नंबर पे मौसीकी के दिलदादा होते हैं, शौकीन होते हैं। तो इन चीजों के ऊपर मैं ये नहीं कहता 5वीं चीज छोड़ के बाकी चीजें के इंसान के लिए मायूब है, ये नहीं है। हर इंसान सारा कुछ इन्हीं की वजह से जो है ना वो कर रहा होता है, लेकिन हमारी तरजीह ये चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर तरजीह ही ये हो गई तो फिर तबाही को कोई भी हमसे जो है वो नहीं रोक सकता है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी इस बंद की। चलें अब शेर जरा लिखते जाएं, मैं आपको 3-4 शेर इसके अंदर जो है वो लिखवा दूं। जी, पहला शेर इसमें है, पहला शेर है आ तुझको बताऊं। आ तुझको बताऊं तकदीर उमम क्या है, शमशीरो सना अव्वल, कॉमा लगाएंगे इसके बाद, ताऊ सुरबाब आखिर। जी, तुझको बताऊं तकदीर उमम क्या है, शमशीर सना अव्वल, ताऊस और रुबाब आखिर। दूसरा शेर इसके अंदर जो है वो लिख लें, किताब मुअल्लम से फिरते हैं
भागे मगर नाच गाने में सबसे जी, किताब मुअल्लम से फिरते हैं भागे मगर नाच गाने में है सबसे आगे। शेर नंबर 3, मोहसिन नकवी ये शायर का नाम है, इसके ऊपर ये अलामत लगा लेंगे। मोहसिन गरीब लोग तो तिनकों का ढेर है। पानी में बह गए, पानी में बह गए तो कभी मलबे में दब गए। जी, 3 हो गए। शेर नंबर 4, फितरत अफराद से, ये जरा नया है शेर, मुश्किल है, थोड़ा सा ख्याल करेंगे। फितरत अफराद से इगमाज, इगमाज आखिर में ज़्वाद लिखेंगे, स्वाद, इगमाज भी कर लेती है। फितरत अफराद से इगमाज भी कर लेती है, कभी करती नहीं। मिल्लत के गुनाहों को मुआफ। जी, जी बच्चों, उम्मीद है आप लोगों को ये नजर आ रहे होंगे ये शेर। जी, मैं अब शेरों को पढ़ रहा हूँ, अच्छी तरह से आप लोगों ने सुन लेने हैं और लिख लेने हैं अच्छी तरह से। उम्मीद लिख लिए होंगे, अगर कोई गलती हो तो देख लेंगे। आ तुझको बताऊं तकदीर उम्म क्या है, तकदीर उम्मत की तकदीर क्या है। शमशीर और सना तलवार, अव्वल ताऊस और रुबाब आखिर, यानी ये ज़ेब व ज़ीनत, ये खूबसूरती, ठीक है, ये सारी। इगमास के मीनिंग जी बताता हूँ, वहां पर हूँ। शमशीर और सना अव्वल, ताऊस और रुबाब, ये खूबसूरती, ये नगमे, ये मूसीकी, ये सारी ये बात की चीजें हैं। पहले सबसे पहले कौम के अंदर जो है वो अपने दिफा के लिए, यानी अपना डिफेंस मजबूत करना। किताब मुअल्लम, ये शद लगा के ऊपर जबर लगा लेंगे। किताब मुअल्लम से फिरते हैं भागे मगर नाच गाने में है सबसे आगे। मोहसिन नकवी साहब शायर हैं, बहुत बड़े उर्दू जुबान के पाकिस्तान के, तो उनका ये शेर है। मोहसिन, ये अलामत ऊपर नजर आ रही होगी आप लोगों को, ये इधर देख रहे हैं, ये अलामत शेर के शुरू में ये लगाई जाती है, और जो अगर शायर अपना तखल्लुस कहीं इस्तेमाल कर रहा है या नाम, तो उसके ऊपर ये अलामत लाजमी होती है। मोहसिन गरीब लोग तो तिनकों का ढेर है, पानी में बह गए तो कभी मलबे में दब गए। फितरत अफराद से इगमास कर देता है, आंख को फेर लेना। जैसे मैं आपको देख रहा हूं, मैंने अगर ये इस तरफ मुंह कर लिया, इस तरफ मुंह कर लिया, ठीक है, ये आंख मैंने देख ली, तो उसको इगमास कहते हैं। यानी अल्लाह ताला इंसान को छोड़ देते हैं एक बार, ठीक है। फितरत अफराद से अगमास भी कर लेती है, कभी करती नहीं मिल्लत के गुनाहों को माफ। अल्लाह चुप हो जाता है, एक बंदा गुनाह कर रहा है, ठीक है, तो अल्लाह ताला खामोश हो जाते हैं। कितने दुनिया में गुनाहगार हैं, हर बंदा जो है ना गुनाह करता है, अल्लाह ताला जो है वो इस बात को बर्दाश्त कर जाते हैं, सह लेते हैं, इगमास कर लेते हैं, आंखों को फेर लेते हैं, चुप हो जाते हैं, लेकिन गुनाह माफ नहीं होता।
اس کے گناہ کا اس کو سزا جو ہے وہ ضرور ملتی ہے، ملت پکڑی جاتی ہے۔ یہی تو بات ہے، دیکھ لو نا 1000 سال کی حکمرانی کے بعد آخر انگریز وہ کہاں سے اٹھ کے جو ہے وہ ہمارے اوپر آ گئے تھے۔ انگریز آئے نہیں ہوتے بلکہ ان کو لایا جاتا ہے۔ تو یہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب ملت گناہوں میں پڑتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ پکڑ لیتا ہے، ان کو غلامیوں میں دھکیل دیتا ہے۔ آزادی ویسے بنیادی طور پر بیسیکلی بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے۔ آزادی کا ایک لمحہ ہے بہتر غلامی کی حیات جاوداں سے۔ غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ تو اس لیے جو قوم اب آزادی کی قدر نہیں کرتی وہ پھر جو ہے نا وہ غلامیوں میں پڑ جاتی ہے، وہ ان برائیوں میں پڑ جاتی ہے جو ہے نا۔ اچھا جی، میں بتا دیتا ہوں، میں یہ دونوں جو ہے نا اس میں جی تھرڈ شعر جو ہے وہ بچے پوچھ رہے تھے تھرڈ اور فورتھ۔ محسن غریب لوگ تو تنکوں کا ڈھیر ہیں، اگر آواز سمجھ آ رہی ہے، محسن غریب لوگ تو تنکوں کا ڈھیر ہیں، پانی میں بہ گئے تو کبھی ملبے میں دب گئے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ چوتھا شعر نمبر، فطرت افراد سے اغماز، فطرت افراد سے اغماس، یہ ادھر دیکھ لو، ادھر میں لکھ رہا ہوں یہ اغماس، ٹھیک ہے۔ چلو جی، فطرت افراد سے اغماس بھی کر لیتی ہے، آنکھوں کا پھیر لینا، کبھی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کا معاف۔ ایک بندے کا چپ ہو جانا یہ نہیں مطلب کہ وہ اس کے دل میں ہی جو ہے نا وہ دل ہی صاف ہو گیا، نہیں، بعض اوقات بندہ چپ ہو جاتا ہے لیکن اس کے دل میں بات، اللہ خاموش ہو جاتے ہیں، دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ چپ ہو جاتے ہیں بھی چلو کرنے دو اس کو جو کرتا ہے، لیکن پھر کسی دن اللہ تعالیٰ جو ہے نا پکڑ لیتے ہیں اس کو۔ جی اب وہ 5 منٹ باقی ہیں اور میں تو ختم کرنے کے لیے آیا تھا، 7 بند پورے، لیکن ایک بھی نہیں پورا ہوا، 5 منٹ رہ گئے ہیں تو ٹائم اور پڑھانے کا جو ہے وہ نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو کوئی سوال ہو تو وہ آپ لوگ جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں۔ جی 5 منٹ ہیں آپ لوگوں کے پاس اور بند نہیں پڑھ سکتے ہم لوگ۔ آپ لوگوں کے جو ٹیسٹ ہیں نا اردو کے، دیکھو 2-3 باتیں میں اگر آپ لوگوں سے یہاں کروں۔ نمبر 1، فیس کے حوالے سے جانتے ہو بار بار سر کا میسج آتا ہے گروپ میں، ان کو کیا اچھا تو نہیں لگتا بار بار یہ میسج، تو اس حوالے سے آپ لوگ ان کے ساتھ کوآپریٹ کریں، ایک چیز۔ دوسرا جو ٹیسٹ ہے وہ لکھتے ہیں آپ، امید ہے لکھتے ہوں گے، تو پھر آپ لوگ جو ہے وہ پہنچا بھی دیا کریں آفس میں، تاکہ ہم لوگ جو ہے اس کو چیک کر کے آپ کو واپس کر سکیں، آپ کا نقصان نہ ہو۔ امید ہے انشاءاللہ جنوری کے اندر اوپن ہو جائیں گے ادارے، ٹھیک ہے، تو تاکہ جو بیچ کے اندر یہ مہینہ گیپ آیا ہے تو آپ لوگوں کے لیے کوئی مسئلہ نہ بنے، ہم لوگ آگے اسی طرح جو ہے نا وہ پڑھائی یہاں سے جاری کر سکیں، ٹیسٹ بھی آپ لوگوں کے ساتھ میں ہوتے رہیں۔ ایم سی کیوز کیسے؟ جی ایم سی کیوز میں آپ لوگوں کو میں نے وہ دیے تھے 5 نمبر جو ہے وہ اس میں کیا کہتے ہیں سبقوں میں سے، سر آپ کے پاس جو اشعار موبائل میں ہوتے ہیں وہ واٹس ایپ پہ سینڈ کر دیے کریں۔ جی ہاں آپ لوگوں کو مسئلہ ہے، مطلب وہ تو صاحب میں نے لکھوا دی ہیں جو ہوتے ہیں شعر، ٹھیک ہے، تو چلو وہ بھی کر دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا جی معروضے کے بارے میں آپ لوگ پوچھ رہے تھے، تو اس میں 4 سیکشن ہیں جانتے ہو، اس میں ہم لوگ سبقوں میں سے کر رہے ہیں، 5 نمبر دیے تھے، اور میں نے آپ لوگوں کو سمجھائے تھے رموز اوقاف، وہ بھی میں دوں گا اب نیکسٹ ٹیسٹ کے اندر جو ہے نا 5 نمبر اس میں سے۔ تو اسی طرح باقی رہ گئے جو ہے نا وہ تذکیر و تانیث، وہ بھی آپ جانتے ہو، پچھلے سال بھی آپ لوگ کرتے رہے ہیں، علامہ اقبال اور اسلامی مسائل، ٹھیک ہے میں سینڈ کر دوں گا، بے فکر رہیں۔ اچھا جی، تو باقی رہ گئے صرف امدادی افعال، یہاں بچے صرف چند ایک آن لائن ہوتے ہیں جو لے رہے تھے لیکچر، جبکہ کلاس بہت ساری ہے، ٹھیک ہے، 2 اوپر کلاس ہیں غز کی، 2 نیچے ہیں، تو یہ جو ہے وہ میں کلاس کے اندر ہی آپ کو انشاءاللہ جب آپ لوگ آئیں گے نا، یا تو یہ ہے کہ سب آن لائن ہو جائیں پڑھے تو پھر تو میں سمجھاؤں یہاں، کوئی بات نہ، اگر یہاں سمجھا دوں گا آپ لوگ سمجھ لیں گے، باقی پھر ان کو سمجھانا پھر سے پڑے گا، تو اسی وقت جب آپ کلاس میں آئیں گے تو انشاءاللہ جو باقی معروضی ہے وہ میں وہاں پر آپ لوگوں کو سمجھا دوں گا، ٹھیک ہے، اور کوئی مسئلہ؟
جی اللہ حافظ. ٹھیک ہے بچے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و کرم رکھے، دعاؤں میں یاد رکھا کریں. السلام علیکم.